Okay, all right. Thank you. Okay, so I welcome all of you to the webinar on CPEC, its prospects and socioeconomic implications on the world and the globe as well. So I would like to now welcome our distinguished guest, Dr. Hassan Dawood, who is the distinguished scholar and a seasoned practitioner of project management, and with his extensive experience in both public and private sectors. So he is currently serving as an associate professor at Bahria University and as a senior advisor in CEEC International China. So I would like to welcome him. And yes, sir, over to you. Sure, sure. Sir, now you are allowed to unmute yourself. Okay, thank you very much. So Thank you, thank sir. you. Uh, and We shall be starting our lecture. Let me just share some slides. Sir, let me give you host rights so that you Okay. would be able to share your slides. Yes, sir. Now you may share your slides. Can you see the slides? Okay. Yes, they are visible. Okay. Yeah, for those of you, I'm not sure what's the audience like, but I think if they are CSS aspirant as you just mentioned, uh, let me just walk them through what actually CPEC is and how can they. So CPEC on the right is the picture of Gwadar Airport, and on the left is Shenzhen. So Shenzhen is a city which was developed under the concept of progressive development, phase-wise development, and to be developed in less than 3 decades. So when it all started, when this all function started, it transformed into uh, a greatest metropolis, which it is now. We have to be bilingual, or should it be in English? Sir, as you wish. You can go bilingual as well. Let me just start in English and then I'll move to my convenience. Sure, sure, sir. So, the world is transforming. It's transforming faster than most of us can assimilate and actually look at how this is going to be. But one good news is, while the change is profound and sometimes uh, n- not clear, the other thing, the good part is that Asia is now opening up more and has understood the importance of geography and also understood the importance of regional connectivity. So, therefore, Asia is looking for more opportunities connecting China being the center of gravity. They're all looking at this. And then, of course, the global economic landscape through technology, trade liberalization, free capital movement, advances in communication. All this is actually is changing the way that we do work and also changing the way that we do business. The capitalism is coming under a lot of
threat, the dominance of dollar is coming under a lot of threat. And when I say threat, it means with the Western perspective, because China is emerging, Asia is emerging, the new blocks are emerging, like BRICS, like SCO, and some of the others. And look, countries, companies are looking at alternatives on how to uh, leverage their natural endowment, the uh, like the resources, mineral resources, human resources, or any other God gifted resource that they have. They're trying to leverage that. And I also believe that every developing country can develop in phases progressively to become a middle income country or a high income country in 1 or 2 generation. And the living example is just across border is in China, who have actually worked on enhancing productivity to benefit them. So, as I said, geography, large population, connectivity, these are some of the options that we have and countries have to leverage, because uh, and also we need to understand that Pakistan is 100 years old, is going to be 100 years old in 2047. That's a great milestone. And by 2047, we have about the population is going to be 250 million. And that population will actually uh, be be giving us about 1.5 million new job entrants each year. So that number by 2050 is going to be quite alarming with all the other things. And of course, uh, we're looking at China. There's talk about कि क्या China is it exiting or what is it? But to address all these challenges, we need strong leadership, pragmatic, strong leadership, and strong economy. And that strong economy is to go to that path. I think we can have a stimulus, and China can be that stimulus for this. So also we need to understand Chinese model for grasping the understanding about CPEC, because there's a natural way of going into industrialization, whether it's fourth, first, second, or anyone, from labor intensive to capital intensive to technology intensive, and of course knowledge intensive. So China in the past 3 decades have graduated to knowledge intensive, and they are growing phenomenally in various sectors. And uh, it's a powerhouse of an economy. And I think China is, and Chinese middle tier cities like Wuhan, Wuxi, and Hefei, they are developing EV. Let me take you. So China is doing trade with 124 countries, and America is doing with 54. I mean, there's no political aspect to this, just numbers. So wherever money flows to areas where there is enabling environment, money flows to areas where you have that pull factor for us to grow. And therefore, this is the competition which is coming. China, with its productivity, and now that robotics and AI is coming, is actually multiplying their speed of work, which is already too good for us. And that is the fact that sometimes people say that in China, and other aging population there. But I think the way that robotics is coming, the way technology is transforming, even aging, they can compensate with aging number till a certain point, and then again their demographic changes will improve, and they will work on that. So, EV, solar panels, lithium ion battery, just a litmus test of how an economy is growing. So just look at the exponential growth of these technology-led industries. So this is this is great, and I think if it's happening in your neighborhood, we should be very happy. And if we have the political convergence on many points, at least till now, then of course we should be happy with this go. Also, China has reduced
about 800 million people they have taken out of poverty. This has never happened. And so much of growth, so much of wealth accumulation has never happened by a country which, without a war, remember that. This is without war. Countries have become richer, but they have had to go through war, sometimes through colonialization. अगर आप लोग CSS का ध्यान दे रहे हैं, you should understand. And of course, I said about capitalism and socialism. Now that you're going into this, you should also know the difference. What are the fundamental difference between these two and how this is changed? So I think this has happened through political will, pragmatic leader, policy continuity, and political stability. So these are the basic ingredients. If you want to become rich, if you want to become stable, these are simple basic ingredients. There is no other ingredient beyond that. And whatever system you want to bring, Islamic, capitalism, socialism, whatever, these fundamental areas remains if you want to work on businesses, And now we have the Belt and Road Initiative, which has certain pillars of policy coordination, people to people interaction, financial integration, and unimpeded trade. So these are good things, and these are things that we want, whether we want it through CPEC or otherwise. These are things that regional integration is important. I'm just looking at 2, 3 books that Tim Marshall has written there in my library, and from Power of Geography to Hostage of Geography to History of Geography, and all this is remember, boys and girls, whatever you want to predict, whatever you want to do in future, it has a push of history. History never leaves you. And that push is actually determining how nations, whether they want to fail or whether they want to succeed, their way of work वो अभी उठी is हो, अभी is थक through गई। that. अब आप भी ना इस So पे मैसेजेस ना करें। इसका बस नहीं, the जहालत का जवाब the जहालत नहीं है। पहले भी ये जवाब ना so I अभी दिया think अभी that भी ना दे, बस छोड़ Belt दे। and Road Initiative Miss Roosh, has please mute galvanized 1 yourself. trillion of economy. It has lifted 40 million people out of poverty. There's a lot of special economic zones coming, but China-Pakistan economic corridor is a stimulus to our economy because we lie in the center of three engines of growth from Central Asia to Middle East to Southeast, South Asia, Southeast Asia, where phenomenal work is happening in Asia. So will I, and we're blessed to be in that place where connectivity is very important, energy rich to energy hungry areas. And this connectivity is actually supporting countries to grow, and it is supporting Pakistan also. We are under a certain era and time of political polarization, but nothing is more important than economy. If there will be economy, ये सारी बातें तब तक ही हैं जब तक economy है. रोटी पेट में हो ही तो ये बातें होती, नहीं हो तो कोई ये सब चीजें नहीं चलती. Whether it's Adam Smith or Lenin or anyone else, I wish I can name an economist from contemporary economists from Muslim world, but they're not. So therefore, so there are areas जहाँ पर FDI, foreign direct investment, China की तरफ से आ रही, and all of them are important for us because they're relevant to us, whether it's education, healthcare, or infrastructure development, tourism. And China is investing overseas. If we don't we don't want them to invest here, they'll go somewhere else. So I think for that. So with this understanding, let's talk about CPEC. There were targets given in CPEC. First target was market cultivation. Second target was expansion development, period of maturity. So first target was achieved in a good way. There was a lot of convergence, good political will. Everything went well. Second, few areas did well. I think special economic zone could not do well. Industrial cooperation, primarily, I would say, because of COVID and then our local political discussions and discourse. Because the investment comes to area where there is calmness, otherwise उन्होंने रौले में ही आना है, तो अपने मुल्क में ना पैसे लगा लें. So they're looking places where there is enabling environment, the conditions are okay, people are growing, people are happy, and they want to spend money, even if it's import substitution or export-led industry.
they want to invest in areas. So therefore, we had challenges. COVID ने बहुत तंग किया. But now, slowly and gradually, things are getting better. You know, for an investor, it doesn't matter कि government में इस वक्त कौन है. Environment अच्छी होनी चाहिए. वहां पर लीडर का नाम क्या है और उसकी सेहत कैसी है और शक्ल क्या है और जेंडर क्या है, इससे नहीं फर्क पड़ता. So there, and last is of course the third target is maturity. So we have railway and other things coming up. So from that we go. So अभी तक मैं ये last slide है मैं आपको बताया था. We have had about 200,000 employment, direct employment. The indirect is much more. We have had 66,000 megawatt of energy, 886 kilometers of transmission line, 510 kilometers of regional connectivity. ये याद रखिएगा कि सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट से आप लोगों के शहरों को डेवलप करके तरक्की नहीं आ सकती. इट हैज़ टू बी अ रूरल अर्बन लेड synergy, agriculture sector, manufacturing sector, so industrialization and of course the agriculture sector grows. So जब आप roads और infrastructure बनाते हैं, Chinese कहते हैं if you want to become rich, build roads. So therefore, road does not mean कि आप physical road, it can be optical fiber in this time and a submarine cable and other things also. And you know, Pakistan export has risen by about 35% in the past 1 decade since the start of CPEC. Our sesame seed, agri-based export, red chili, so many other things. Seafood export has grown about 40% in 2020. So good things are happening. We देखिए याद रखिए, this is one project जिसके अंदर there's a big socio-economic transformation happening in a minority led area. Hindu जहाँ पे ज़्यादा है, थर कोल का project. So that these are things which may not be available. आपका DI खान की इस्लामाबाद से हकला DI खान रोड से कनेक्टिविटी, ऊपर आपकी कनेक्टिविटी हुई है KKH से, you know, you've got a new tourism corridor going up. So yeah, this is how it is. We're building dams, we're building water reservoir, and we are building what what's the last thing? Yeah, the renewable energy projects through this, and then the other things. Next phase, Kendra, we are looking at agriculture. We are looking science and technology. They're subtle things, but now that there's stress in the global economy, China has its own issues to settle with, you know, the tariff war between US and China. So this period might go low. It might look low, but it really, for me, it really doesn't matter how fast you're going, as long as you're going in the right direction. Remember that as youngsters also. So I think we're moving in the right direction CPEC wise. We are a little slow or fast, it really doesn't matter. External environment, internal politics, security, these are challenges, but I think we are moving in the right direction to address this. At least we realize our problem. We realize that by uh, by only through convergence and collaboration we can improve. We have a growing economy. I can tell you now whether you agree or not. In next 10 years, China is going to be number one economy. So by being in the neighborhood of a number one economy or even number two economy of the world, with huge size, trillions of dollars moving in and out, about 5 trillion moving in and out each year. So if you can just take away about 1%, that still is more than your existing economy. लेकिन याद रखिएगा कि CPEC is not your whole economy. A whole economy comes from your taxes, जो पता नहीं आप देते हैं कि नहीं देते. It comes through other resources, natural endowment, जिसके जरिए फिर आप collect. Stimulus, this is just a stimulus कि आपके जो काम होना है through your public sector development projects, PSGP कहते हैं उसको, planning commissions, क्या उसके थ्रू आपके प्रोजेक्ट्स मजीद तेजी से हो सकते हैं. आपको आपका गवादर जो है, या लेट मी टॉक अबाउट गवादर अलर्ट. सो या सो प्लीज याद रखिए कि आपने अगर जमीन पे डेवलपमेंट करनी है ना, तो आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ और वाटर होनी चाहिए. तो गवादर मास्टर प्लानिंग हो चुकी है. हमने गवादर की मास्टर प्लान में मैं भी शामिल था, तो इसलिए Gwadar city की master planning की बात कर रहा हूँ. And then there is a master plan for Gwadar port which goes till 2050. So I think उसमें हम थोड़ा slow है port wise. I think city wise also
गवादर के अंदर यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो चुकी है। वो वोकेशन सेंटर बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्लीट हो चुका है। ग्वादर एयरपोर्ट लास्ट वीक कंप्लीट हुआ है। सो आई थिंक इन ग्वादर थिंग्स आर हैपनिंग। दे मे नॉट लुक वेरी फास्ट, बट पहले हमने 70 सालों में क्या किया ग्वादर के। So at least there is something happening. There is talk about Gwadar in our policy discourse. There is talk about Gwadar in Islamabad and also internationally also. So I think this is good. We may improve further. ये मैडम अरूज इजाज भी हैं बीच में, सुन रही हैं चुप करके। So there can be other things also that could be done in terms of coastal tourism, renewable wind projects along the coast. हो बहुत कुछ सकता है और इतना महंगा भी नहीं। It's just the commitment. मैंने आपको शुरू में कहा ना, pragmatism बहुत important होती है। So that's all from my side, and if you have any question, you can ask. Thank you so much, sir. We have few questions. First, I would like to call Anika. She would like to speak and then ask questions. Yes, Anika. अस्सलाम वालेकुम सर। Mhm. अस्सलाम वालेकुम मैम। Okay. मैम माय क्वेश्चन वाज कि सर देखें, जब हम देखते हैं कॉलोनाइजेशन का, तो अब जो एरा है कॉलोनाइजेशन का वो टेरिटोरियल बेस तो होगा नहीं। हमारे पास 2024 जुलाई के स्टार्ट के हिसाब से जो हमारी डिफॉल्टिंग कंट्री थी दैट वाज श्रीलंका। उसका जो डेप्थ था चाइना का, इट वाज 8.9 बिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान का डेप्थ था 26.6 बिलियन डॉलर्स। तो सर सीपैक अगर हम उसे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें कि जी वो हमारी इकोनॉमी को ग्रूम कर देगा और हमें एक ट्रांसिट प्रोवाइड कर देगा और हम एक कॉरिडोर बन जाएंगे और हम जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहां तक हमारा एक्सेस हो जाएगा और हम टैरिफ से बहुत कुछ अर्न कर सकेंगे। मीनवाइल सर ये हमारे ऊपर बेटा आप जरा डेब्ट अपना क्वेश्चन बर्डन नहीं छोटा है। करें ताकि मैं आंसर लंबा कर सकूं। दो चीजें हो सकती हैं, या क्वेश्चन लंबा हो सकता है या आंसर लंबा हो सकता जी है। व्हाट डू यू सर, मैं वांट? ये कहना चाह रही हूँ कि जिस हिसाब से हम इकोनॉमिकली डेब्ट बर्डन में जा रहे हैं चाइना के, हम इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन की तरफ नहीं चल जा रहे। ठीक है। दूसरी चीज ये अच्छा सर कि अनिका, आप मुझे ये हमारी। बताइए, आप आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस? यस सर। ओके। दुनिया में सर सबसे ज्यादा लो बर्डन, सबसे ज्यादा लोन किस मुल्क का है? सर दुनिया में सबसे ज्यादा लोन तो यूएसए का है, एज फार एज आई तो दुनिया रिमेम्बर। में सबसे लंबी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? यूएसए। ओके। दुनिया में सेकंड बड़ा लोन किसका है? नहीं याद, नहीं पता। चले मैं बता, जापान का। वो कौन से ओके। नंबर पे? तीसरे नंबर। देखिए, लोन जो होता है ना, पहले आप इस चीज को फंडामेंटली समझे। लोन जो होता है, अब गवर्नमेंट्स को लेना पड़ता है। गवर्नमेंट्स ने प्रोग्रेसिव होना चाहिए, अगर स्पेशली अगर आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव करनी है। आप लोगों को नौकरियां तो देनी है ना लोगों को। आपने लोगों के लिए कारोबार बनाना है, कारोबार जिंदगी चलाना है। हुकूमत का और क्या काम होता है? यही होता है। सो अगर आप इस एंड आई आंसर योर पार्ट आल्सो, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ दिस ओवरऑल सिस्टम। सो जो दुनिया के अंदर बड़ी इकोनॉमीज हैं, इनके लोन्स हैं, और ये लोन्स जो होते हैं ये इसलिए लिए जाते हैं कि आप अच्छा काम कर सकें। अब उस अच्छे काम का अच्छा बुरा लंबा चौड़ा ये एक सब्जेक्टिव चीज होती है, इजंट इट? उसको फिर आप डिफाइन करते हैं कि आपकी नेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उस नेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए डेवलपमेंट करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक चीज है, एक पोर्ट है, स्पेशली जब मुल्क जो है वो 3% से 5% पे ग्रो करते हैं, इवन 3 से 5, मैं 7 की बात भी नहीं कर रहा जिस तरह चाइना करता है, या इंडिया सब टाइम्स हफ्ते में एक दफा ऐसा नारा लगा देता है। तो अगर जो वो मुल्क जब ऐसे ग्रो करते हैं तो आपको पोर्ट्स की जरूरत होती है, ज्यादा पोर्ट्स की जरूरत होती है। आप कराची में रहते हैं, आप कराची में रहते हैं मैडम अनिका? जी सर, मैं Yes. कराची में रहती हूँ। जी। तो कराची आपको लगता है कि कोई एक शरीफ आदमी ट्रेड कर सकता है कराची में? सड़कें बिल्कुल भी चौक नहीं कर हैं, सकता सर। बाजार बंद हैं, गलियां छोटी हैं, हो सकता है? सर नहीं हो कराची सकता में ना। सबसे बड़ा मसला जो है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का है। रीजनल वो एक फ्रैक्शंस जो अलग हैं चीज है वो ना, वो तो आपका पोलिटिसाइज हो मसला है चुके ना। हैं, तो वो जी जी ट्रेड नहीं अनिका, वो होती। तो आपका दूसरा मसला ये है ना। कि
हाँ जी, दूसरा ये कि हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं हमारे, तो 50 से ज्यादा एनओसीज आपको लेने पड़ते हैं किसी भी ट्रेड को करने के लिए, किसी भी लोकल बिजनेस को भी अनिका, इम्प्लांट करने आपने के लास्ट लिए। टाइम बिजनेस कब किया था? मैंने सर किया था, मैंने क्लोथिंग का बिजनेस किया था। इट वाज एन ऑनलाइन बिजनेस। और जब तो मुझे कितने एनओसी लेने इंटरनेशनल पड़े थे आप? मैंने जब इंटरनेशनल पेमेंट मंगवानी थी, सो आई हैड टू देखिए आंसर बात टू सुन, मेनी देखिए क्वेश्चंस। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप सुनती हैं मीडिया वाइज कि सर अच्छा मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वन एनओसीज टू हैं। क्वेश्चन को आंसर मैं किए। इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे काम किया है ना, बहुत ज्यादा काम किया, लिखा भी है, काम भी किया। यस सर। यस, वी आर ओवर ओवर रेगुलेटेड कंट्री, दैट्स अ यस। फैक्ट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लोग बिजनेस, जो मैं बात कर रहा था ना वो डिफरेंट थी। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी ट्रेड सर। होता है कि आपने दुकानें लगाई, ये उससे काम किया, उसमें आप टैक्सेशन कर। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पोर्ट है ना आपकी कराची की, अब उधर से आप कमाड़ी गई कभी? जी सर, मैं कमाड़ी और फिशरीज दोनों जगह गई हूँ। दोनों जगह गई, रास्ता देखा जी है वहां जाने का? जी सर, वो तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, आप वहां पहुंच ही नहीं हाँ, सकते। तो और मगरिब देयरफॉर के बाद तो व्हाट आप यू नीड बिल्कुल नहीं इज, पहुंच सकते। तो अगर आपका ग्रोथ अगर होना है, लेट्स से टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट करना, आप कहते हैं ना हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, भी उड़ान पाकिस्तान में भी, तो उसके लिए आपको रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर नहीं होता। लेकिन हम बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी ये बात करते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी करप्शन है ये। सो बात ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ना। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कराची आपको नजर आ रहा है कि एक चौक हो रहा है, सो व्हाट डू यू नीड ऑल्टरनेट ऑप्शंस। तो पोर्ट कासिम आपके मुल्क को उन्होंने फॉर एंड इट्स अ वाइज डिसीजन कि जो यस। कार्गो के लिए आपने कराची रखा है, जो ऑयल एंड गैस के लिए आपने पोर्ट कासिम कर दिया। सो जी फॉर मोर एक्सपोर्ट, इफ यू ग्रो मोर से 3%, अभी तो आप वहां तक नहीं पहुंचे, होपफुली नेक्स्ट ईयर वी एज्यूमिंग के इकोनॉमी इतनी होगी, तो देन यू नीड मोर पोर्ट बिकॉज एक्सपोर्ट कर रहे होंगे ना। सो और इम्पोर्ट भी कर रहे होंगे, आपने इकोनॉमी चलानी है, एंड उसको बिगर बढ़ाना है, पोर्ट्स। तो आपको इम्पोर्ट भी आप करेंगे। तो उसके लिए नीड मोर पोर्ट्स, तो उसके लिए गवादर है, लेकिन ये एयरपोर्ट बनाना, गवादर बनाना लोन है। सो नाउ कमिंग टू योर आंसर इज कि जो लोन का साइज है ना, फॉर एग्जांपल सीपैक के अंदर टोटल लोन जो है वो अबाउट 5 बिलियन US डॉलर। 5 बिलियन US डॉलर डेट टू जीडीपी रेशो में बहुत ही कम है। सो ये एक वेस्टर्न नैरेटिव होता है डेट ट्रैप का, और उसका देखिए, क्या पाकिस्तान ने या हमने या आपने कभी मना किया कि अमेरिका आए और इन्वेस्टमेंट करे? कभी मना किया? या हमने किसी और मुल्क को मना किया कि आए जी हमारे मुल्क में? जब चाइना करता है तो फिर बहुत सारे वेस्टर्न एरियाज को तकलीफ होती है। और दूसरा ये कि बिजनेस जो होता है, अभी आपने देखा है ना, ये अभी आ, आ, आजकल बड़ी डिबेट है डोमेस्टिक इकोनॉमी में कि जी इंटरेस्ट रेट लो करना है। कहाँ गई मिस, का नाम क्या था मुझे भी याद, अनीका। अनीका, आजकल आप सुन रही है ना कि इंटरेस्ट रेट लो करना है या लो जी होना सर। चाहिए ग्रोथ जी की सर। तरफ जाने के लिए। जी। तो इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? लोन पे इंटरेस्ट होता है ना। लोन पे इसका इंटरेस्ट होता है मतलब ये लेकिन। है कि बिजनेस को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टिमुलस चाहिए होता है कि आपने उसको आगे लेके जाना है ताकि इकोनॉमी ग्रो। इसीलिए कहते हैं इंटरेस्ट रेट लो करें। और जो एंड लो आपको सीपैक इंटरेस्ट के रेट। अंदर, जी सर सीपैक के जैसे ही अंदर जो लो आपको लोन इंटरेस्ट रेट मिलता है, आएगा, तो उसकी रेpercussions में हमें कुछ सालों बाद जो है वो एक माइल्ड सी रिसेशन वाला फॉर्मूला भी तो देखना पड़ेगा। बिकॉज जब वो इंटरेस्ट वो माइल्ड रीपेमेंट्स सी, की बात आएगी, तो उस वक्त तो हम लोगों की स्पेंडिंग और चीजें कम होती चली जाएंगी। तो लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट इज नॉट द ओनली आइडिया टू स्टिमुलेट ग्रोथ। सर दूसरी एक क्वेश्चन बस वो मेरा लेने हुई है कि सर हमारा 46,000 मेगावाट की जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जबकि हमारी ट्रांजिशन लाइंस हमें अलाउ करती हैं मैक्सिमम 30 किलो मेगावाट्स तक। तो सर इसमें इस वक्त जितनी भी हमारी आईपीपीज हैं या जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज को ऐड कर रहे हैं, उसमें 17% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सी पैक के हैं। और उनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोल बेस्ड हैं। और वो जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो कोल हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो वर्ल्ड बेस्ट कोल होगा, उसकी ग्रेडिंग हायर साइड पर है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम। लेकिन सर वो कोल पाकिस्तान में या थर में नहीं अवेलेबल, वो कोल भी हमें एज अ फ्यूल इंपोर्ट करना होता है।
हम जो चाइना की जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रही है उसको रन करने के लिए जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए वो उनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज लोन। उनको ऑपरेट करने के लिए भी हमें उनके टेक्नीशियन और उनके इंजीनियर्स चाहिए। सर तो हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियन, हमारी हमारी लेबर, उसका क्या? अच्छा अनिका, एक बात मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ये जी है सर। कि आपको मजीद रिसर्च करने की जरूरत है अगर आपने CSS के इम्तिहान पास करना। वजह यह है कि आपके हाँ जी। नंबर्स बहुत गलत हैं। पहली बात ये कि जो जो CPEC के अंदर जो मेजर प्रोजेक्ट्स है ना, जो मेजर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, वो हाइडल है। और मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। और मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो हाइडल की है, चाहे वो सुकी किनारी हो, चाहे वो कोहाला हो, चाहे वो करोट हो। तो आपने नाम भी ऐसा शायद नहीं सुने होंगे। कोहाला हो, करोट हो, सुकी किनारी हो, आजाद पतन हो। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। दे अबाउट कॉस्टिंग अराउंड 1.9 बिलियन, 1.8 1.9 बिलियन US डॉलर्स इन्वेस्टमेंट। So that's Chinese investment coming in the Hydel side. तो मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो है हाइडल साइड। अच्छा, अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कोल फायर प्लांट्स क्यों जरूरी होते हैं। अब ये इसको आर्ग्यूमेंट ना कीजिएगा, आप जो मैं बात करता हूँ ना इसको रिसर्च कर लिएगा तो you'll get the ठीक ठीक answer. सर, ठीक याद ठीक। रखिएगा। तो दुनिया के अंदर कौन सा कोई एक मुल्क बता दें जो कि अमीर हो और वो अमीर कोल बेस्ड प्लांट्स के बगैर हुआ हो। एक मुल्क बता दें, कोई है सर ऐसा? ऐसा कोई मुल्क नहीं है, लेकिन हम ठीक हो गया। अपनी आप कैपेसिटी बात के हो गई अंदर ना। रहते हुए काम हाँ करें ना। सुने ना, अगर कोई मुल्क नहीं है इसका मतलब है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट वो खुद तो अपने खत्म नहीं करते, हमें कहते हैं अपनी एनवायरनमेंट ठीक करो। बिल्कुल ठीक है, एनवायरनमेंट ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल बात दुरुस्त है। बिल्कुल। लेकिन आप अपने ना जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी मिक्स को भी मुल्क होता है, वो अपनी एनर्जी मिल्क को फॉर सिक्योरिटी रीजन सिक्योर करता है। सो हाउ कैन यू सिक्योर योर एनर्जी डिमांड? कल को जंग हो जाए तो आप तेल तो नहीं इंपोर्ट कर सकेंगे कोई। सो यू लुक एट इंडिजिनस रिसोर्सेज। तो आपके पास इंडिजिनस रिसोर्सेज पानी है, नंबर वन। जी। दूसरा आपके पास इंडिजिनस रिसोर्सेज कोल है। तीसरा बायोगैस है। चौथा सनलाइट है। प्रॉब्लम विद रिन्यूएबल। सनलाइट इज एंड ऑल्सो हाइडल प्रोजेक्ट्स इज कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस लोड नहीं हो सकता। इट कैन बी ठीक। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज, आप घरों पे लगा लें, ऊपर सोलर लगा लें, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है घरों बिकॉज के लिए। प्रोडक्शन लेकिन वेरी करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जी। और सर्दी है तो जिस तरह भी इस्लामाबाद में सर्दी है, सो इफ देयर इज अ क्लाउड कवर तो इट वोंट हैपन। सो दैट दीज आर रीजन। सीपेक ने ये किया है कि आपको ना डाइवर्सिफाई कर दिया है आपके एनर्जी मिक्स को। आपके हाइडल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बहुत तेजी से बन रहे हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 5,000 मेगावाट आ गए। मैं चूंकि एसोसिएटेड में और भी आ रहे हैं, दासू, मोमन, सुकी किनारी, बालाकोट, दियामीर भाषा, विच नॉट अंडर सीपेक बट बीइंग बिल्ड बाय चाइनीज। सो ये जब आपके एनर्जी, अच्छा दूसरा ये कि आप याद रखिएगा हमेशा कि जो डैम के और हाइडल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये सिर्फ बिजली के लिए नहीं होते। इनका सबसे बड़ा हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे पानी वाटर की स्टोरेज। कमी आ रही है, और अगर आपने रीसेंट लिस्ट देखी होगी 2050 में वाटर डेफिशिएंट कंट्री की, उसके अंदर यस सर, पाकिस्तान का यस भी सर। नाम है। जी So सर। if that happens, then therefore we need more dams because India is building dams fast. Other countries are building, so are we. जो कोल का है ना आपके पास, मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ना, आपने अपनी रिसर्च की बेस पे अपना जजमेंट बनाना। याद रखिएगा जब कुछ बात करो ना, तो उसमें आप उसकी बात रिसर्च के अंदर जब आप इंटरव्यू करते हैं ना, तो उसमें आप उसका ओपिनियन सुनते हैं और एंड में आप अपना जो भी कंक्लूजन, आई एम नॉट हेयर टू टेल यू कि आप अपना ओपिनियन चेंज करें या उसको डाइवर्स। सो जो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं वो आपके पास अब थर ही है, और थर के पास इतनी एनर्जी है कि वो आपके 100। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि इसका कोल जो है ना, और शायद ख्याल था और शायद बहुत सारे लोग जो हमारे हमें आके समझाते हैं वो ये कहते हैं कोल की क्वालिटी कम है ये वो। जब निकाला ना कोल और उसके हमने एक्सपेरिमेंट किए, तो कोल की क्वालिटी इज फार बेटर देन व्हाट वी हैड थॉट एक्चुअली। क्योंकि मैं इन प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड था, बल्कि अभी भी हूँ। सो इसीलिए जब ब्लॉक 2 आपने किया, तो फिर अब ब्लॉक 1 के अंदर फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई कि जी है इसको किया जाए और इसके जरिए एनर्जी और लिया जाए। और फिर अब इस वक्त बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हो रही है कोल टू गैसिफिकेशन, विच इज एन वर्ल्ड फिनोमेना। अभी इन इन्फेंसी स्टेज पे है, इस पे बहुत काफी काम हो रहा है। होपफुली पाकिस्तान में भी जल्द शुरू हो जाएगा।
So therefore, these are, so yes, coal has its environmental impact, but if you have a good basket जिसमें sizable share आपका हाइडल है, कुछ शेयर आपका सोलराइजेशन या रिन्यूएबल्स का है, कुछ शेयर आपका बायोगैस का है, कुछ शेयर आपका कोल का है, तो आपकी दो चीजें होंगी जो कि 2000, इसीलिए आपको गवर्नमेंट जरा कॉन्फिडेंट नजर आती, कोई भी वो कहते हैं जी 2027 ऑनवर्ड्स एनर्जी की कॉस्ट नीचे आएगी, जो कि आनी भी है चाहिए when you have more hydel projects जिनकी कॉस्ट नीचे होती है, और आफ्टर 30 years they are converted and given to the country with rupee 1 only. So उस लिहाज से ये अच्छा एक फिनोमेना अभी नेचुरली चैलेंजेस। अच्छा, कोल का ये है कि इन्होंने क्रिटिकल फायर टेक्नोलॉजी लगाई है जिसकी वजह से उतना स्मोक जनरेट नहीं होता, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, और वो वाटर आपकी उसी की कूलिंग के लिए यूज हो जाता है। The way that technology is developing, and the way that technology is developing in for renewable energy, thanks to China again, through for coal development. अब आप देखें ना कि दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क और जिसका काम दुनिया को मतलब है, बड़े मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने तो कह दिया कि मैं पेरिस अकॉर्ड से निकल रहा हूँ, कहा है ना उसने। हमें वो जी कहते हैं सर। नहीं भाईजान, आप कोल से बिजली ना प्रोड्यूस करें। जी सर। So this is और बहुत सारे environmentalists जो कि वेस्टर्न होते हैं वो भी आपको ये कहते हैं। So what I'm trying to suggest is that you should have a balance of everything. किसी चीज आप खाना भी ज्यादा खाएं तो फिर मेरी तरह मोटे हो जाते हैं। So you should have a balance of everything. If there's a balance of coal, water, gas, renewable, biogas, as I said, and other sources, maybe in future hydrogen is coming very fast. A lot of work is being done on hydrogen technology, and people are coming to Pakistan to talk about it, especially through water lines जो हमारे। Even आपकी जो टाइडल वेव से जो एनर्जी की तरफ आ रहा है, कुछ मुल्क उसमें बहुत आगे चलेंगे, यूरोप में। So I'm hoping that happens. So what I'm trying to say is कि ये देखें, जब आप एक मुल्क होता है, गलतियां होती हैं ना, गलतियां भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही जबरदस्त प्रैग्मेटिक प्लानिंग हुई होगी और हर चीज ठीक हो, चैलेंजेस आते हैं, और इसीलिए इनको प्रोजेक्ट्स कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम ही यही होता है, या मैनेजमेंट का काम यही होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट हो, चाहे घर की मैनेजमेंट हो, कि जहाँ गलतियां हैं वहां पे सुधार कर ले। सो मेरे नजदीक नॉट यूजिंग कोल फ्रॉम थर in a balanced way is crime to the to youngsters जो आप लोग हैं उनके लिए, क्योंकि आपको हमने कुछ दे के जाना है ना, ऐसे तो नहीं चले जाना इस प्लेनेट से अगले प्लेनेट की तरफ। सो हमने कुछ दे के आपको जाना है, और उस देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है, या एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ, या इंडस्ट्रियलाइजेशन विल नॉट हैपन अनलेस यू हैव cheap electricity. Cheap electricity can only come if you are depending on your indigenous sources. If you're dependent कि हम दुबई से और बहरीन से और कतर से ऑयल गैस लेंगे, तो कभी भी वो सस्टेनेबल नहीं होगा। मॉडल्स चैलेंज होते रहेंगे, महंगे होते रहेंगे, हर उन्होंने भी पैसा कमाना है। एंड देन सप्लाई चेन्स, कोई एक जंग आ गई, गजा का क्राइसिस आ गया, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चले। सो वी हैव टू रिलाई ऑन आवर ओन इंडिजिनस सोर्सेज, आवर ओन पीपल to go into development path. Therefore, this CPEC project is helping you achieve that. There are problems, but that are not related to CPEC. Even debt की जो आपने बात की, मैंने आपको बताया 5 बिलियन का टोटल डेट है CPEC के अंदर, वो भी 5 से कम हो गया, बहुत कम हो चुका है। अदरवाइज हम बहुत डेट, हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत डेट लेता है जो कि डेवलपमेंट के लिए। भी आप देखिएगा रियल स्टेट कितना लेता है अगर डेवलपमेंट, पिछली गवर्नमेंट में कितना लिया गया, इस गवर्नमेंट। सो यस, याद रखिए अनिका, your answer to every problem is balance. If you balance in life, you balance in your expenditure, if you balance in your planning, everything goes well. अगर आप कहें नहीं जी मैं सारा कुछ कोल से करूंगा, वो भी गलत है। आप कहें नहीं सारा मैं इंपोर्टेड फ्यूल से करूंगा, आप कहें सारा कुछ मैं डैम से करूंगा, तो ये फिर आप एक डैम बनाए जिसने चाइना ने बनाया, 3 गॉर्जियस डैम, 22,000 मेगावाट एक ही डैम से आ गया। सो दैट्स हाउ इट इज। Okay, thank you अच्छा so सर। much, sir. Yeah, Anika, सर can you, हमें yeah, यस do you have any questions? अनिका, आप किसी और को Other मौका question? दें। यस Yes, yes, एक I would. क्वेश्चन था। सर कुछ साइट्स ऐसी रेलेवेंट कि जहाँ से हम सी पैक के अकॉर्डिंगली डेटा और एनालिसिस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें।
Okay, Anika, we will take your question later. इसका And अनिका there एक are आंसर few, ये कि देयर इज अ प्लानिंग कमीशन वेबसाइट, आप उससे देख लें। बाकी आप, मैं आई कीप राइटिंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स, आप द न्यूज़ के उसमें चले जाइएगा, मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप, अगर आप गवर्नमेंट साइड वर्जन देखना है तो आप प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे देख। okay, thank you, sir. जी मरियम। I hope, Anika, everything is answered. So we have two more questions जो कि थोड़ी से different है. One is जो repetitively आ रहा है, which is कि पाकिस्तान, how Pakistan will balance between US and China when they have this increasing competition and rivalry, and without impacting its relationship with either of them. So one गुड is क्वेश्चन। this. आई थिंक दिस इज Yes, मिस्टर बादशाह अली। yes, या yes. एक तो यह मुझे ना, मैं जब किसी का आंसर कर रहा था, मुझे उसकी शक्ल देखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि मुझे ये जरूर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं, या ऑफ स्क्रीन करके बिस्तर पे सो रहा है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, बट एनी वे आई आंसर। जो बादशाह साहब, इसका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हैड सम वेरी गुड इन द पास्ट ऑल्सो एंड कंटेम्प्रेरीज ऑल्सो। हमें आजकल वैसी पोलराइजेशन में अपने मुल्क की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, विच इज द सैडेस्ट पार्ट। हालांकि इसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। आप में से सारे कराची के हैं? Sir, most of them, हाँ। not all. या मैं अभी कल कराची से, आई हैड मेरी ब्लू इकोनॉमी पे था। इट वाज सच अ डिलाइट टू सी people from 60 countries coming to, and I was in a forum जिसमें मैं था, इरानियन नेवल चीफ था, Saudi naval chief tha. Saudi and Iranian naval chief sitting together in forum to speak with me and two others from Philippines and China, and. So पाकिस्तान का एक पुल फैक्टर है। हम बुला लेते हैं लोगों को अपना, दुनिया, हम बड़ा एक यूनिक मुल्क है। यहाँ पर एक तरफ वो मसाइल हैं जो आप सुनते रहते हैं, मैं उनका तस्करा ऑनलाइन नहीं करना, आप सबको पता है, और दूसरी तरफ ये भी है, नो अमन एक्सरसाइज हैपनिंग एंड थिंग्स हैपनिंग। सो ये बेवकूफ तो नहीं है ना, 60 मुल्क आपके मुल्क में आ गए। अब आप कहते हैं सिक्योरिटी के इश्यूज, हम खुद ही अपने ना बहुत सारी। so the answer to your question is that I think we have capable diplomats who can handle the situation. And we should learn from China. China has a very great history of diplomacy, subtle way में जंगें लड़े बगैर, मसाइल का हल, इकोनॉमिक पावर। सो सबसे पहले ये है कि आपकी डिपेंडेंस अगर दोनों मुल्कों में के ऊपर उतनी नहीं होगी, तो आप डिसीजन ले सकेंगे कि आप क्या, व्हाट इज इन योर नेशनल इंटरेस्ट, जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जरूरी तो नहीं कि अगर हम चाइना के दोस्त हैं तो अमेरिका के दुश्मन है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, या अमेरिका के दोस्त हैं तो चाइना के दुश्मन। सो आई थिंक हमारी जो डिप्लोमेसी है वो इस फैक्टर पे फैक्टर इन करती है और करेगी कि हम दोनों को बता सकें कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, और उसी नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे अगर अमेरिका हमारे पास इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करना चाहते हैं। देखें, चाइना हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है हमारे मुल्क में, बाय फार सबसे बड़ा है। अमेरिका 5वें नंबर पे आता है। एंड चाइना हेल्प अस व्हेन वी नीडेड इट, चाहे वो डिफेंस साइड हो, चाहे वो न्यूक्लियर साइड हो, चाहे वो इकोनॉमिक साइड हो। बट हैविंग सेड दैट, our biggest importer, I mean our products go to America. So दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनना चाहते हैं। बट हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को अगर आसियान ममालिक की तरफ, मलेशिया, इंडोनेशिया की तरफ चले जाएं, हमारे ताल्लुकात इंडिया से ठीक हो जाएं, तो हम उस पर ट्रेड शुरू कर दें, विच इज अ फार फ्लैश थिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो फिर हम डिपेंडेंस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी हैव the understanding of how to leverage both sides. We have actually in the past 70 years have leveraged both sides. But I think at this time, all I can say fairly in an open forum like this is that China is really proving to be our good friend, in not just in economic terms, but also in terms of geopolitical terms. हमें सपोर्ट करता है यूएन के फोरम्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में, हमें जब लोन की जरूरत होती है तो सपोर्ट करता है। फर्क दोनों के केस में ये है कि यूएस की तरफ से जब हमारे पास कोई सपोर्ट आती है, चाहे वो आईएमएफ के प्लेटफॉर्म से आए, बिकॉज आईएमएफ इज नाउ बिकमिंग अ पॉलिटिकल एंटिटी, तो कोई ना कोई स्ट्रिंग अटैच होते हैं। अगर वो नहीं साथ आए
तो फिर स्ट्रिंग अटैच नहीं होते। चाइना के अभी तक तो कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं हो, चाइना आपसे डिमांड नहीं करता आपको देते, आप ही जाते हैं उनके पास। एंड लाइकवाइज सऊदीज आल्सो, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू दीज फ्रेंड्स, दे हैव हेल्प्ड अस इन टाइम्स ऑफ uncertainty, so to say. So I think we'll handle this, but it will be interesting. एक चाइनी बादशाह साहब आप हैं यहाँ पे मौजूद हैं? Yes, sir, yes, sir, I'm listening you. बादशाह साहब, एक चाइनीज की ना बद्दुआ है, एक कर्स है चाइनीज कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये बहुत पुरानी बद्दुआ है उनकी, समझ आई? मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम। एक चार्ल्स डिकन्स की किताब है, स्टोरी ऑफ टू सिटीज, टेल्स ऑफ टू सिटीज। उसमें कहते हैं वी लिविंग इन द बेस्ट ऑफ टाइम बट वी आर आल्सो लिविंग इन द वर्स्ट ऑफ टाइम। वी लिविंग इन टाइम ऑफ लाइट बट वी आर आल्सो लिविंग इन टाइम ऑफ डार्कनेस। सो इट डिपेंड्स आप किस साइड पे। और अनफॉर्चुनेटली अब इंटरनली भी इतनी पोलराइजेशन होगी कि कोई भी बात करे, मैं भी जो बात कर रहा हूँ तो एक पार्टी डिफरेंट तरीके से सोच रही होगी, दूसरी डिफरेंट। सो इट डिपेंड्स विच साइड यू आर स्टैंडिंग। So, but for people like me, it doesn't matter. We will say the truth, what we want. Thank you so much, And sir, for such a particularly positive answer. डिप्लोमेसी के अंदर जितना आप सच बोले उतना अच्छा हो। हमने True. एक कॉनोटेशन डिप्लोमेसी को कॉनोटेशन में हमने चालाकी कर दी है। हम कहते हैं घर में भी कहो बड़ा डिप्लोमेट है यार तू, बड़ा चालाक है तू। You know, diplomacy is not about being chalak. It's about, of course, pragmatism, but also about being honest to your national interest. Last question, then I have to leave. My family is waiting for me. Okay. Just, sir, the last question is impact of situation in Afghanistan on CPEC and the increasing attack within Pakistan and all. Yeah, it's very unfortunate that we have for any country, if you have an unstable, लेकिन या एन अनस्टेबल नेबर, घर आपके मोहल्ले में भी अगर आपका नेक्स्ट डोर लड़ाइयाँ कर रहा हो, सड़क गंदी कर रहा हो, तो तकलीफ होती है ना। तो इसी तरह लाइकवाइज ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। यार मुझे ना एक सवाल आखिरी मरियम रहमान से लेना है। शी इज रेज्ड हर हैंड फर्स्ट, Yeah, अगर अभी yeah. तक वो रह गए तो लास्टली हम उसका लेंगे, ठीक? Yeah. बिकॉज इट्स नॉट फेयर कि उसने सबसे Mm-hmm. पहले हाथ खड़ा किया। इफ शी इज देयर, आई डोंट नो वेदर शी इज लेफ्ट। Yeah, she is Hello, writing sir. direct message. वेट कीजिए मरियम, एक मिनट रुकिए, मैं Yes. ये आंसर दे दूं पिछले। Mhm. So, so for us, I hope as our neighbors or as a friend, as someone who's sharing the same religion and same culture, we hope that they understand the importance of regional connectivity. We hope, देखिए ये बात अगर हम समझते हैं ना, और वो भी समझते हैं कि टेररिज्म बढ़ा लेंगे और बंदे यहाँ पे मार, हम बड़ी ढीठ और रेजिलियंट कौम है। हमने बड़े देख लिए हैं, इससे बड़े बड़े चैलेंजेस देखे। सो आई थिंक के ये हम रिजिलियंट हैं, और इंशाल्लाह अगर हम यूनाइट हो गए ना तो हम बहुत सो को सही कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आवर नेबर्स। बट और इसीलिए हमें यूनाइट नहीं होने दिया जाता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, और इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होना। अगर हम हो गए तो फिर आप देखिएगा करते क्या हम। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया अमन एक्साइज का आपके सामने, ये कोई वजह ही है तो ये लोग आ रहे हैं ना, कुछ इंटरेस्ट है ना पाकिस्तान में। तो आई थिंक, आई बिलीव, let me give you a very good answer. I believe that China will play an important role in stabilizing our relationship with Afghanistan because we are part of BRI, Belt and Road Initiative. They are also part of BRI. They are also expanding their role in SCO. The countries, especially the landlocked countries in Central Asia, for them it is very, very important to have access to our waters because they need food, they need supplies. ये एक वर्ल्ड कन्वेंशन भी है जिसके जरिए जो लैंडलॉक कंट्रीज है, डबली लैंडलॉक कंट्रीज हैं, जिनके वो खुद भी लैंडलॉक्ड है, उनके आगे भी लैंडलॉक्ड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो थर्ड कंट्री होता है कि वो अपने एक्सेस दे, जिस तरह हम गवादर से दे सकते हैं अदर कंट्री। So I think China will play its role. China will make sure, hopefully, to stabilize Afghanistan because, of course, if it's unstable, it impacts them also. They have also border with China. They will stabilize. But I think it is very important that we have good relations, good friendly relationship with. It's very important friendly relationship with all. We have हम बहुत अच्छी कौम है यार, मतलब है
इससे अच्छी कौम नहीं है दुनिया के अंदर, चाहे हम अपने बारे में कुछ भी कहते रहे। वी विद द मोस्ट रिजिलियंट, वी हैव सफर्ड मोस्ट, वी हैव गिवन मोस्ट, वी हैव बीन द होस्ट ऑफ, हमने अपना पेट काट के अफगानियों को खाना खिलाया। मजाक है कोई? मतलब है कोई कर सकता है? हम जरा 6 बंदे अफगानिस्तान चले जाए नहीं रह सकते, या किसी और मुल्क चले जाए। अभी आप देखें ना गाजा में, यू नो व्हाट इज हैपनिंग। सो आई थिंक फेयर फेयर वर्ल्ड ऑर्डर विल कम. Pakistan will have its challenges, but I think Pakistan has the potential to address these challenges. And हमसे ज्यादा कोई sacrifice देने वाला नहीं है, चाहे जान की हो चाहे माल की हो। तो फिर देख लेंगे यार, टाइम आएगा। तो बहरहाल अभी ऐसी सिचुएशन ही हुई। आई एम होपिंग दैट things will get better. Yeah, in Afghanistan, yes. Okay, thank you, sir. Sir, would you like to take Mariam's question? Yeah, sure. Yeah, okay. Yes, Mariam. Ask. Assalamualaikum, sir. Hope you're doing well. Sir, I joined a little late, so I'm not sure if you already answered this. My question is regarding the security. CPAC is basically considered to be a game changer for Pakistan, and that's true. But I have a question that's two-part. Firstly, there is the external factor. Iran's Chabahar port is often considered as a competition for CPAC. So how do we see the future for that? And secondly, there is the internal dilemma. The route for CPAC is going through Punjab, and you know there is a sectarian tensions, or we can say interprovincial tensions between Punjab and Sindh and KPK as well. So what do you think about that? Is it going to help with national stability if the CPAC is going forward? Because we already see that there is a lot of Okay. interprovincial problems. Understood. Okay. First of all, I don't think Chabahar as a competition. I think both of these ports complement each other. I was with the Iranian naval chief, as I said yesterday, in Aman exercise. I was there in Karachi. I came back just last night after my talk on that. So I think these two ports complement each other by far, by any standard. Tourism, trade, जो भी आप सोच सकते हैं, you use of port. Travel, people going for religious tourism to both sides. So and it's much safer. Going through sea is much safer than going through land, health wise, security wise. So I think these two ports complement with each other. This is the jargon by the West कि ये दोनों compete करती हैं। कोई कारोबार होगा तो compete करेंगे ना, अभी तो दोनों वेले बैठे हैं। So, so let's hope that there will be more trade. But if there will be more trade, both countries, inshallah, soon. So these two ports will complement each other. एक बात ये। दूसरी बात ये, मैंने आपके जब शुरू में नहीं थी, तो I said building infrastructure and roads help reduce terrorism and security issues. आप देख सकती हैं, आप रिसर्च कर लें कि even in Balochistan, incident of security have, I mean, it's a relative figure, but since the road have been established, क्योंकि Balochistan, yes, we are seeing insecure things, but before that also कौन सा बहुत secure था, isn't it? और मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आप 10 मेगावाट बिजली देते थे लसबीला के लिए, अब आप 100 मेगावाट और 300 मेगावाट देने लगे। पानी पहले बिल्कुल नहीं था, आप एटलीस्ट। So things are moving progressively and it will bring change. लेकिन हमारे अपने इंटरनल भी इश्यूज है ना, वो जो इश्यूज हैं, मेरे नजदीक, as someone who works on investment and business, I think the only way is through economy. और कोई तरीका नहीं। लोगों को अमीर बनाएं, लोगों को आसूदा बनाएं, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करें, खुद भी बेहतर हों। Trade and business can help address some of the issues that we have right now, including the sectarian that you mentioned. बट आई डू नॉट सी, जो आपने बात की सिंध और पंजाब में, कोई ऐसा सेक्टेरियन इशू कोई नहीं है। और केपी में और पंजाब में भी सेक्टेरियन इशू नहीं, इट्स अ पॉलिटिकल इशू। सो पॉलिटिक्स में, मरियम, याद रखना, आज के दुश्मन कल के दोस्त भी हो सकते हैं। यू माइट गेट अ सरप्राइज आल्सो, सो एक बात याद रखिए, लेट मी फाइंड हु कोटेड दिस। एक बात ये आप याद रख लें अपने लिए, there are no accidents in politics, and if there is an accident in politics, it was supposed to look that way. अब इस बात का क्या मतलब है ये तुम खुद समझ लेना। you're a mature girl, ठीक है ना? Yes, I've got it. So the sectarian politics basically I mentioned was the resource allocation between Sindh and Punjab.
regarding water allocation, or we can say development, there's always been some kind of tensions between the two provinces. ये टेंशन भी किसने बनाई होती है यार? तुम्हें मुझे कोई टेंशन है? तुम कराची में रहते हो, मैं इस्लामाबाद में, हमारे दरमियान कोई टेंशन है? या मैडम मेमन के दरमियान कोई टेंशन है? कोई नहीं। ये टेंशन पॉलिटिशियन पॉलिटिकल होती है, बिटर पॉलिटिक्स। सो Got it, sir. देयर इज नथिंग मोर टू दैट। एक पंजाब हैज ऑलवेज बीन हिस्टोरिकली, अगर आप ने बुक पढ़ी हो एतजाज हसन की द इंडस सागा, उसके अंदर उसने इज मेंशन्ड व्हाई आर वी द वे वी आर, यू नो। सो हमेशा से, चाहे वो इधर हो चाहे इंडिया में पंजाब हो, दे ब्रिंग फूड, ग्रेन्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ का वेदर, जो पीएच वैल्यू है ग्राउंड की, एग्रीकल्चर की, वेरी सूटेबल फॉर ग्रोथ। लेकिन लाइकवाइज एजेके केपी पानी प्रोवाइड करता है। सो अल्लाह ने बड़े खूबसूरती से इनको आपस में रखा है। मेहनत कश लोग बलूचिस्तान में, माइंस एंड मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, एंड देन सिंध, such an educated middle class there, isn't it? So ये खुदा की खूबसूरती है। ये बहुत ही प्यारा बुके है ये मुल्क जो है, इसमें डिफरेंट है। इसको अगर हमने गोरे से अच्छी चीजें तो नहीं सीखी, बुरी चीज में हमने सीखा डिवाइड एंड रूल वाले। So I think that's one way of looking at the things. But I think on a ground level, on people to people aspect, I think there is none. But समटाइम्स हमें बहुत मजा भी आता है ना। मैं जब छोटा होता था ना मरियम, तो मेरे घर में मेरे लेट फादर, हमारे घर में एक टीवी होता था, अब तो हर कमरे में टीवी होता है, या एटलीस्ट लैपटॉप होता है, सब फोन होता है। तो मेरे माय लेट फादर यूज्ड टू वॉच 9 to 9:30 खबरनामा। ठीक है ना, ये खबरनामा होता था। तो हम कहते थे अपने वाले साहब को, क्या आप हर वक्त खबरें देखते रहते? अब हम सारा दिन कभी जियो, तो कभी एयरवे, तो कभी न्यू टीवी, तो कभी कोई, डिपेंडिंग ऑन what side of the politics you are, सारा दिन खबरें देखते रहते। मैंने अभी, I was in Turkey with on a government thing, so I was at the airport. There was a small bookshop, so I went there because they had coffee also, so I went there. So I bought this book which is called Don't Read the News. That's very interesting because it says, ये उसी ने स्टीवन कोहेन की, कोहेन नहीं नाम है ना, स्टीवन को, the 10 bets, 7 bets, 7 Habits of highly successful people. So उसी की लिखी है। तो उसमें उसने कहा कि you should balance the television and newspaper, because news making people share with you the news they want to tell you, not essentially the news you want to hear. So तो वो ये कहता है कि आप हफ्ते में 2 दिन अखबार पढ़ें और कोशिश करें कि शुरू करें आप बिजनेस वाले सफे से, और सिमिलरली टीवी के टाइम को, न्यूज़ वाले टाइम को बैलेंस करें। क्योंकि अगर आप अगले दिन भी टीवी लगाएंगे तो इतना कोई चेंज नहीं आएगा जो आपकी जिंदगियों में हलचल ला सके। और वो चीज़ें जो आपकी जिंदगी में हलचल ला सकती हैं, वो आपको फौरन पता चल जाएगी। वो या अर्थक्वेक होगा, या फ्लड होगा, या किसी की मौत होगी। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, और उसके लिए आपको न्यूज़ मीडिया की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? सो लाइक एनर्जी इन अनीका's question, you should have balance in what you think and what you understand. And as smart people, we should do our enough research of things and understanding the true reality and the ground things. I hope I've answered your question. Yes, Thank you, sir. Thank you so much. So sir, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ा करें। अब आप उनको कह के चले गए कि अब 2 ही बार पढ़ना है उन्हें हफ्ते में। But anyways, thank you so much sir for coming. डिपेंड करता है ना, एक तो लाइफ गुजारने के लिए आपने कितनी देर न्यूज़पेपर पढ़ना, True that. लेकिन एक दूसरा ये होता है कि आपने नॉलेज हासिल करने के लिए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। सो दोनों के लिए डिफरेंट है। Different, totally different. जिंदगी गुजारने के लिए अखबार की जरूरत नहीं। हम्म, अखबार, हाँ, अखबार जिसका बिजनेस अखबार बेचना है उसके लिए जरूरी। सर फिर वो हमारे बच्चे वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे होते हैं तो दे कम अप विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल दीज थिंग्स, बट एनीवेज इट वाज अ वंडरफुल सेशन. Yeah, it was quite a good session. I liked it. So thank you so much sir for taking out your time, and you have patiently answered all the questions. Thank you everybody They for were good joining questions. us. I was very happy to Yes. answer. Okay, thank you so much sir. So yes, that is going to Bye-bye. help us and our students as well, because they have exams in couple of days.
So yeah, Best thank of you. luck, everyone. Bye-bye. Bye-bye, sir. Thank you. God bless. But remember, life is an exam. There will always be Yes, exam one after true, another. true, true. Bye-bye. Thank you, sir.